السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، اب سے کچھ ہی گھنٹوں بعد رات 10:10 تک وہ 48 گھنٹے مکمل ہو جائیں گے کہ جن 48 گھنٹوں میں آئین کے مطابق گورنر پنجاب بلیغ الرحمان صاحب کو چیف منسٹر پنجاب چودھری پرویز الہی صاحب کی طرف سے اسمبلی تحلیل کرنے کی ایڈوائس سمری پر دستخط کرنے ہیں، اور اگر نہیں کریں گے تو 48 گھنٹے پورے ہو جائیں گے، وہ آٹومیٹکلی پنجاب اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی۔ دوسری طرف سی ایم کے پی کے محمود خان صاحب نے بھی آج یہ اعلان کیا ہے کہ ان کی طرف سے ایک تقریب میں خطاب تھا، انہوں نے کہا کہ یہ میرا بطور سی ایم آخری خطاب ہے، اور پی ٹی آئی کی طرف سے بھی اعلان پہلے ہو چکا ہے کہ جیسے ہی پنجاب اسمبلی ڈیزالو ہوگی ساتھ ہی کے پی کے کی اسمبلی کو بھی ڈیزالو کر دیا جائے گا۔ یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ صدر پاکستان عارف الوی صاحب کی طرف سے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہا جائے گا۔ اس کے لیے ایک طرف تو یہ بھی اطلاعات ہیں کہ ایم کیو ایم پاکستان حکومت سے علیحدہ ہو جائے گی، اور دوسری طرف حکومتی جماعت پی ایم ایل این یا پی ڈی ایم کہنا چاہیے، اور پی ایم ایل این خاص طور پہ کہ ان کے کچھ ایسے ایم این ایز ہیں جو پی ٹی آئی کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور وہ ووٹ نہیں ڈالیں گے جب اعتماد کے ووٹ کا وقت آئے گا قومی اسمبلی میں۔ آگے کیا آنے والے ہفتوں میں مہینوں میں ملک کی سیاسی صورتحال کا کیا منظر ہوگا، اس پر ہم آج کے پروگرام میں بات کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ سندھ کے بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ کہ جس میں بھرپور کوشش یہ کی گئی ایم کیو ایم کی طرف سے اور پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ یہ انتخابات نہ ہوں، اس میں کامیابی نہیں ملی، اور آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے یہ فائنل اعلان کر دیا گیا کہ کل یہ بلدیاتی انتخابات ہوں گے۔ اب اس میں ایک رائے یہ بھی ہے اور پی ٹی آئی کی طرف سے یہ کہنے میں آیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایم کیو ایم ان بلدیاتی انتخابات کا بائیکاٹ کرے، اینڈ ود ان ایم کیو ایم خالد مقبول صدیقی صاحب کو تو یہی رائے دی جا رہی ہے کہ ان کو بلدیاتی انتخابات میں جانا چاہیے، ان کا اجلاس بھی جاری ہے۔ دوسری طرف آج عمران خان صاحب نے بھی اپنے پارٹی رہنماؤں کا اہم اجلاس بلایا، خطاب کیا، اور عمران خان صاحب نے آج ایک انٹرویو میں یہ بھی کہا کہ وہ شہباز شریف صاحب کو اتنی ٹینشن دیں گے کہ ان کو نیند کی گولیاں لینی پڑیں گی۔ آج کے پروگرام میں ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے کہ واٹس ہیپننگ نیکسٹ۔ ہمیں جوائن کیا پاکستان تحریک انصاف سے لال چند ملی صاحب نے، ملی صاحب کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ پی ایم ایل این سے ہمیں جوائن کیا ہے غوث خان نیائی صاحب نے، نیائی صاحب آپ کی بہت بہت شکریہ فار جوائننگ اس آن دا شو ٹونائٹ، اور ہمیں جوائن کیا ہے ماہر قانون اظہر صدیق صاحب نے۔ اظہر صدیق صاحب آپ کے بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے اظہر صدیق صاحب، گفتگو کا آغاز میں آپ سے کرتا ہوں، اور قومی اسمبلی میں اعتماد کے ووٹ کے معاملے پر بات کرتے ہیں۔ اعتماد کا ووٹ جیسا کہ پنجاب اسمبلی میں ہونا تھا، اسی طرح سے آئین کے مطابق قومی اسمبلی میں بھی ہوگا اگر صدر پاکستان کی طرف سے کہا جاتا ہے شہباز شریف صاحب کو کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں۔ اگر وہ لینے میں کامیاب نہیں ہوتے تو پھر آئین کیا کہتا ہے، اس صورت میں کیا ہوگا؟ اسی طریقے سے کیا وہی پروسیس فالو ہوگا پنجاب اسمبلی والا؟ اس پر ذرا تفصیل بتائیے گا۔ بہت شکریہ علی صاحب۔ پنجاب والی تو پوزیشن آپ نے دیکھ لی ہے کہ گورنر نے بغیر کوئی سوچے سمجھے اپنا اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ دیا، اور یہ جو ساری چیزیں تھیں نا، یہ اس وقت تھی جب 18ویں ترمیم کے سے پہلے کے حالات تھے۔ 18ویں ترمیم کے بعد بہت تبدیلی آئی ہے اس کے اندر، اور اس میں جو سیٹسفیکشن کا لفظ ہے نا، وہ اسے سیٹسفائی کرنا ہے۔ سیٹسفائی یہ نہیں ہے کہ ووٹ لینے کے بعد آپ کو پہلے مثال کے طور پر اس کی 2-3 ٹیسٹ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ کچھ ایم پی ایز نے استعفیٰ دے دیا، کوئی کولیشن پارٹنر تھا پی ایم ایل کیو جو ہے وہ سائڈ پہ اگر ہٹ جاتی تو اس کا مطلب ہے کہ حالات نظر آ رہے ہیں آپ کو، آپ سیٹسفائی ہو گئے ہیں کہ واقعی ایسا نہیں ہے۔ جو انہوں نے وہ سیٹسفیکشن کے ریزن بتائے وہ تو غلط تھے، اور میں نے اس کے اگینسٹ ایک آئینی درخواست دی ہے گورنر کو ہٹانے کے لیے، آئین کے آرٹیکل 4 اور 5 کو توڑنے کے حوالے سے، اور ٹائم لائن کیا ہونا چاہیے، کیا اسمبلی کا اجلاس نیا بلانا ہے، وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ اب عدالت کے سامنے، ایک تو منڈے کو اعتراض کے رقبہ پر لگا ہے وہ سامنے آ جائے گا۔ اور دوسری بات جو آپ کو ذرا سمجھنی ہے ساتھ ہی وہاں، اب جو کہ وہ بات اس سے آگے چلی گئی ہے، وزیر اعلیٰ جو کہ ماسٹر آف دی ہاؤس ہے، میجورٹی پارٹی ثابت ہو گئی، انہوں نے اسمبلی تحلیل کرنے کا اختیار دیا، اس میں ریزن کہیں نہیں لکھے۔ لوگ سمجھتے ہیں کوئی ریزن کوئی نہیں آنے اس کے اندر، کیونکہ یہ ڈیموکریٹک پروسیس ہے، ایک اختیار آپ کو دیا ہوا ہے کہ آپ اسمبلی ڈیزالو کر سکتے ہیں۔ انہوں نے اپنا اختیار استعمال کر لیا۔ گورنر آئین کے آرٹیکل 112 کے تحت گورنر کے پاس ایڈوائس چلے گی، اور آئین نے لکھ بھی دیا کہ 48 گھنٹے میں اسمبلی ڈیزالو کرنی ہے، جو مرضی ہو جائے، طوفان آ جائے، زلزلہ آ جائے، جو مرضی، 48 گھنٹے کے بعد آٹومیٹکلی یعنی 10:10 کے اوپر جو ہے وہ جو ہے نا اسمبلی جو ہے نا وہ آپ کو ہر حالت میں ڈیزالو کر دینی ہے اور پوری چاہیے۔ اور یہاں اب اس سے اگلی بات جو آپ نے وہ سارا سامنے رکھ کے میرے سامنے آپ کی بات رکھ رہے ہیں، وہ بڑا اہم ایشو ہے صدر نے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو حالات اور واقعات ہیں بالکل صدر کو اختیار ہے
सदर को इख्तियार है, जिस तरह यहाँ गवर्नर ने इख्तियार दिया, वो कह सकते हैं एतमाद का वोट लेने के लिए। वहाँ को मैं कोई एक बात से तो मैं इतफाक नहीं करता कि वहाँ टेक्निकल बड़े मसाइल हैं। मिसाल के तौर पर सदर कहते हैं आप एतमाद का वोट लें, वो अभी MQM तो हटी नहीं है, MQM तो कह रहे हैं इस्तीफे देंगे, तो MQM साथ खड़ी है, इसका मतलब है। तो अगर इनको देखे तो उनके पास सादा अददी अक्सरियत इस वक्त मौजूद है, लेकिन उन्हें एक एज भी है। एज क्या है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्तीफे दे दिए, इस्तीफे मंजूर नहीं हुए, लेकिन वो 20 लोग जो अंदर मुनाफा फराकी ना, वो तो अंदर बैठे हुए हैं। और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पार्लियामानी पार्टी है ना, जो पार्लियामेंट के अंदर बैठी है, आल्दो लीडर उसके शाह महमूद कुरैशी है, इमरान खान साहब नहीं है इस वक्त, वो हटा दिया था उनको, तो शाह महमूद कुरैशी तो इस्तीफा दे दिया हुआ है। तो पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामानी लीडर, तो जब आप अगर इस्तीफा दे देंगे तो आप तो रहेंगे नहीं, वहां तो आपको करनी पड़ेगी ये सारा कुछ करने से पहले आपको एक चालाकी करनी पड़ेगी कि 20-22 लोग आपको पहले असेंबली के अंदर भेजने पड़ेंगे। वो जाएं, वो जाकर अपोजिशन लीडर को हटाएं और आपकी मेजोरिटी आपकी होगी। फिर पार्लियामानी पार्टी 20 वो हो जाएंगे, 22 ये होंगे। तो 22 जब कह देंगे कि आपने वोट नहीं डालना, वरना तो वो 20 बैठे होंगे, अभी वो 20 बैठ के फैसला करेंगे। हमारी पार्लियामानी पार्टी का इजलास बुलाया, शाह महमूद कुरैशी आए नहीं है, हमने से किसी एक ने सदारत की और हमने फैसला कर लिया कि एतमाद का वोट देना शहबाज शरीफ को, तो यहाँ तो फिर सारे का सारा गेम इनकी उलट हो जाएगी। यहाँ आपको पावर पॉलिटिक्स को सामने रख के पहले आपको ये काम करना पड़ेगा। अगर आप ये कर लेंगे तो फिर आपको फायदा, वरना तो वो 20 वोट वो भी डाल देगा और आप कुछ नहीं कर सकेंगे और उन पे आर्टिकल 63 का इतलाक नहीं होगा। वजह क्या है कि पार्लियामानी पार्टी और ये वाला चूंकि आर्टिकल 63 की जजमेंट ने ये बैठ के सेटल कर दिया हुआ है, तो मैं तो फिर वहां पर हालात जो है ना, मैं मखदूश देखता हूँ, वहां बैठकर अब फैसला करना पड़ेगा कि किस तरह लेकर चलना। ठीक, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अगर एतमाद का वोट लेने के लिए कहा जाता है तो एतमाद के वोट में हो सकता है कि ये जो वहाँ पर अरकान कौमी असम्बली मौजूद हैं, राजा रियाज हैं, दीगर और लोग भी मौजूद हैं, वो ये कहें कि जी हमने पार्लियामानी पार्टी का ये फैसला है, लिहाजा हम वोट दे रहे हैं शहबाज शरीफ साहब को, और वो वहाँ पर वोट जब वो देंगे तो क्या वो इससे पहले जो उनको नोटिस जारी हुए हैं वो किसी गिनती में नहीं आएंगे, उसको कहीं काउंट फॉर नहीं किया जाएगा जो PTI की तरफ से दिए गए थे? नहीं है, अब देखे ना, अभी तक तो पार्टी से निकले नहीं, ठीक है ना। फर्ज करें आप पार्टी से निकाल भी दें आपको, तो वो मेंबर पार्लियामेंट तो है ना, मेंबर पार्लियामेंट से जब तक नहीं खत्म होते हैं, MNA नहीं खत्म होते, तब तक तो बात कोई नहीं है ना जी। और वहाँ वो और पार्लियामेंट पार्टी जब तक आपकी मजबूत नहीं होती है, पार्लियामेंट पार्टी जब तक वहाँ बैठ के तो ये एक्शन नहीं लेती है, तो तब तक तो आपके लिए बड़े मसाइल हैं। और आपको यही तो सोचना है। मैं तो देखें, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि एतमाद के वोट के लिए 172 आपने हुकूमती बेंचेस से पूरे करने हैं। हाँ, ये सब कोर्स वो तो आपको पार्लियामेंट के अंदर जो लोग बैठे हैं वो पूरे करने हैं ना जी। ठीक है। और मेरी इतला के मुताबिक वो बिल्कुल यही करेंगे, जो मेरे तक जो इतला है कि वो ऐसे नहीं बैठे हुए नवाजे हैं, उनको अपोजिशन लीडर के तौर पर इस वक्त अयाशियां जो उनकी चल रही हैं, मैंने उनकी तैनाती ऑलरेडी चैलेंज की हुई है, लाहौर हाईकोर्ट में दरखास्त हो गई। मेरे तो है कि अपोजिशन लीडर हो ही नहीं सकता, जो अपोजिशन ही नहीं कर रहा, वो तो कह रहा है कि मैंने इलेक्शन उसके साथ लड़ना जाकर। तो आपकी राय ये है अजीज सदीक साहब के पहले PTI को अपने MNAs को तकरीबन 20 के करीब कौमी असेंबली में दोबारा वापस भेजना होगा, 22 को भेजना होगा, और 22 फिर ये फैसला करेंगे कि पार्लियामानी पार्टी ने ये फैसला किया है, और पार्लियामानी पार्टी के उस फैसले पर जो पहले से लोग वहां पर मौजूद हैं, MNAs जो PTI से जिनका ताल्लुक है, जो PTI की टिकट पे वहां पर मुंतखब हुए थे, वो अगर उस पार्लियामानी पार्टी के फैसले पर अमल नहीं करते और एतमाद का वोट शहबाज शरीफ साहब को देते हैं तो वो काउंट नहीं होगा। हाँ, अगर मेजोरिटी इनकी आ जाएगी और ये कहेंगे, लेकिन वहां क्या होगा जब ये मेजोरिटी नहीं होगी, वो 20 पार्लियामानी पार्टी पे बन बैठेंगे, वो तो कहेंगे हम पार्लियामानी पार्टी, पार्लियामेंट में हम बैठे हुए हैं और पार्लियामेंट पार्टी बैठ के हम फैसला करते हैं। यानी कि उन MNAs का फिर वोट काउंट नहीं होगा अगर वो शहबाज शरीफ साहब को वोट दे देते। 20 होंगे, अगर 20 होंगे, जब मेजोरिटी इनकी हो जाएगी, यानी ये टोटल 42 हो जाएंगे, 42 से इजलास करेंगे और इजलास बैठ के अगर 22 फैसला कर देंगे और 20 मना भी मौजूद हो, तो 22 का फैसला जो है वो 20 में भी पाबंद। ठीक हो गया। और अगर एतमाद का वोट लेने में नाकाम हो जाते हैं सब करने के बाद, तो फिर एक दफा फिर वही प्रोसेस होगा जो पंजाब असेंबली का है कि दोनों पार्टीज को अपने कैंडिडेट्स को प्लेस करना है कि जी कायदे ऐवान के लिए। अच्छा, ये जो आप फर्स्ट रन सेकंड रन ये बात नहीं है, आप रिमूव हो जाएंगे वजीर आजम के तौर पर, ठीक है, फिर नए नॉमिनेशन पेपर दाखिल होंगे और रूल्स के मुताबिक फिर अगला प्रोसेस चलेगा। लेकिन वहां पर फिर ये रन ऑफ इलेक्शन वाली नौबत भी तो आ सकती है ना? नहीं, वहां वो उस वक्त आएगी रन ऑफ इलेक्शन में, और उसमें जो जिसकी मेजोरिटी होगी वो चला जाएगा। तो बात तो फिर वहीं पर आके रुक जाएगी ना अजीज सदीक साहब? फिर वो शहबाज शरीफ बन जाएगा, फिर बन जाएंगे दोबारा प्राइम मिनिस्टर।
बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही, चलिए, बिल्कुल क्लियर। बात सच है। यानी वजह क्या है? वजह क्या है ना कि आपके तो इस्तीफे दिए हुए हैं सब लोगों ने। बिल्कुल ठीक हो गया, आपके क्लियर सब हो गया लोगों जी, ने क्लियर हो इस्तीफे गया। दिए। आपने वाजे कर दिया कि अगर पंजाब में क्या सिचुएशन थी और वहां पर पीटीआई को बड़ा ये अहम नुक्ता है जो आपने रेज किया कि पीटीआई को अपने एमएनएस को असेंबली में भेजना पड़ेगा, और तादाद भी आपने वाजे कर दी कि कितनी तादाद में भेजना पड़ेगा। आपको बहुत बहुत शुक्रिया जी। असद मली साहब, लालचंद मली साहब, आपकी तरफ से, पार्टी की तरफ से फैसला हुआ है कि सदर मुमलिकत एतमाद के वोट के लिए शहबाज शरीफ साहब से कहेंगे? अली भाई, सबसे पहले तो ये कि अजहर साहब ने एक बहुत ही अहम बात की है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेंबरान लोटे बने उनके हवाले से, अभी सिर्फ उनके हवाले से ही नहीं है, ये गुज़िश्ता 8 महीनों में ये हमें तो इल्जाम धरते हैं, लेकिन ये पीडीएम ने और पीपल्स पार्टी ने जिस तरह अखलाकियात का जनाजा निकाला है वो पूरी दुनिया देख रही है। पहले इन्होंने सिंध हाउस किया, फिर उन्होंने पंजाब में जो इलेक्शंस हो रहे थे अपना, अभी आपने देखा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए तो जरदारी साहब वहां चले गए, सिंध के वज़रा वहां पे चले गए, कोई उनसे पूछने वाला नहीं है। इलेक्शन कमीशन भी ये नहीं पूछ रहा उनसे कि भाई आपका क्या काम है वहां पे, आप कैसे जाके वहां पे ये सारी चीजें कर सकते हो, करप्शन में इन्वॉल्व हो सकते हो, हॉर्स ट्रेडिंग कर सकते हो। तो यकीनी तौर पे इन्होंने अखलाकियात का जनाजा निकाला है। नंबर 2, पार्टी में अभी इस वक्त ये बात जो है ज़ेर बहस नहीं है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का उनको कहा जाए या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी, अगर हम चाहते तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी तो ला सकते थे। तो वोट ऑफ कि उस सूरत में उनको 180 से अपना जो भी है नंबर वो पूरा करना था। तो इस वक्त पार्टी में ये बहस नहीं हो रही है। तीसरी बात जो है बहुत अहम है वो ये है, जो प्रेसिडेंट साहब है डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, उन्होंने 2 दिन पहले एक इंटरव्यू में कहा कि ये इस मुल्क का मामला है, ये मुल्क तबाही की दाने पे आके खड़ा हो गया है, दिवालिया होने के दाने पे खड़ा हो गया है, लोगों को आटा नहीं मिल रहा है। आज जो है वो इवन पीएसओ जो स्टेट ओन्ड जो एंटिटी है पाकिस्तान स्टेट ऑयल, उन्होंने लेटर लिखा है कि अगर आप एलसी नहीं खोलोगे तो मुल्क में पेट्रोल की और ऑयल की शॉर्टेजेस हो जाएंगी, आपके बहुत सारे मसाइल है, इंडस्ट्री बंद हो गई है, 20 से 25 लाख लोग बेरोजगार हो गए हैं। तो बात यह है कि प्रेसिडेंट साहब की जो ही इस वक्त प्रायोरिटी है वो ये है और बहुत वाइज है, और उन्होंने स्टेट्समैन होने का एक जो है वो सबूत दिया है कि बातचीत के जरिए मामला को आगे बढ़ाया जाए। और वो इस वक्त भी चाहते हैं कि दोनों अपोजिशन हो या गवर्नमेंट हो वो बातचीत में जाए और मसाइल का हल हो। लेकिन आपने देखा है कि पीडीएम गुज़िश्ता 8 माह से बज़िद है, वो इस मामले में खासतौर पर अगले जो इलेक्शंस है उस पे बात करने के लिए तैयार नहीं है। अब 2 अगर असेंबलीज डिसॉल्व हो जाएंगी उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आप देखेंगे कि सिंध असेंबली से भी बाहर निकल जाएगी और पीटीआई के जो एमएनएस हैं वो खुद जाके असेंबली में जाके अजर्ट करके वो भी इस्तीफा दे देंगे। और उस सूरत में जो बाई इलेक्शन होने जा रहा होगा वो 500 से 550 जो कॉन्स्टिट्यूंसीज में होने जा रहा होगा, ये बाई इलेक्शन जो ये पीडीएम जनरल इलेक्शन कह रही है ना उससे कई गुना बड़ा होगा, क्योंकि उसके बाद रहती 350-400 सीट्स है जिस पे वो इलेक्शन कराने की ख्वाहिश रखते हैं। तो बहरहाल बात यह है कि इस मुल्क की जो इस वक्त जो हालात है वो इंतहाई संगीन है, इंतहाई खराब है। बजाय जो इस मुल्क को आप लंदन से कंट्रोल करें, अली भाई आप जरा अंदाजा लगाए ये कौन सा ऐसा मुल्क होगा। मैं तो कहता हूं कि नवाज शरीफ साहब का नाम जो है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आना चाहिए, जो 3 दफा एक मुल्क का वजीर आजम रहा, उसका खानदान बाहर है, उसके बच्चे बाहर हैं, उसकी मिल्कियत बाहर है, उनके असाजात बाहर है। तो ये बाहर से बैठ के इस मुल्क को कंट्रोल करने, इस मुल्क को रिमोट कंट्रोल से चलाने का तजर्बा अब बंद किया जाए इमरान खान की तरह। और इमरान खान को आपने पावर से निकाला, वो एक चार्ज में गए, उनको गोलियां लगी, वो रेजिलियंट रहे, उन्होंने गिव इन नहीं किया। तो इस मुल्क में रह के मुल्क के लोगों के साथ रह के खिदमत की जा सकती हैं। इस मुल्क से भाग के इश्तियारी होके आप मुजरिम ठहर के आप इस मुल्क की कोई खिदमत नहीं कर सकते। ठीक है लालचंद साहब, मैं तो चाह रहा था फौरी तौर पर गौस न्याय साहब की तरफ जाए, लेकिन अगर हम जाएंगे तो फिर वक्फा भी हमें साथ लेना है, तो बिल्कुल शॉर्ट ब्रेक ओवे है। ब्रेक के बाद वापस लौट कर आएंगे तो हम तफसील से न्याय साहब से उनकी पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू जानेंगे कि क्या है, क्योंकि आज ये भी इतलात आ रही थी कि नवाज शरीफ साहब अभी फौरी तौर पर पाकिस्तान वापस नहीं आ रहे। मरीम नवाज साहिबा वापस आएंगी और वापस आकर वो यहाँ की सूरत हाल को देखते हुए नवाज शरीफ साहब को तजवीज़ देंगी कि उनको कब आना है। इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ये डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। गौस खान न्याई साहब आपकी तरफ आते हैं। माजरत आपको काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ा, इश्तिहारात भी, कमर्शियल ब्रेक ज़रूरी थी। आपकी नज़र में अब जो मौजूदा सूरत हाल है और जो मौशी सूरत हाल भी है, सियासी भी है, मौशी भी है, तो क्या आपकी पार्टी के जहाँ पर अब पंजाब के इलेक्शंस की तैयारी के लिए नवाज शरीफ साहब की तरफ से कह दिया गया है कि तैयारी की जाए, तो वहीं पर फिर आम इंतखाबात की तरफ भी चले जाएं ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए कि खाम खाम एक अलहदा मामला चल रहा होगा, विफाक का अलहदा चल रहा होगा, सिंध का और विफाक का इकट्ठा फिर इलेक्शन बाद में हो रहा होगा? अच्छा अली साहब, बात यह है कि बिल्कुल आपकी बात ठीक है। हम तो इलेक्शन से घबराने वाले नहीं हैं। अभी कौमी असम्बली, ये सूबाई असम्बली की जो एडवाइस भेजी है गवर्नर साहब ने, मेरे ख्याल में कर दी होगी, उन्होंने असम्बली तोड़ दी होगी, एक्सेप्ट कर ली होगी, तो उसमें हम तो कोई घबराने वाले नहीं हैं। हालांकि ये पीटीआई की तवक्कुत से खिलाफ था, वो नारा तो लगा रहे थे। जब एडवाइस भेज दी, पहले तो वो उन्होंने जो भेजी वो परवेज अलाई जो पहले लिख के दी थी, आज से कुछ 2 महीने पहले जो परवेज अलाई लिख के दी थी एडवाइस, ये जी मेरी एडवाइस है तो आप भिजवा दें, पहले वो चली। फिर एक्चुअल जो चीज परवेज अलाई साइन करके वो भेजी। तो एक जी पीटीआई वालों को ख्याल था कि जी ये हम हुकूमत प्रेशर डालेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम तो कोई प्रेशर हमारे पे नहीं है, हमने उसको एक्सेप्ट किया। इलेक्शन की तैयारी हमने इनसे, हमें पता था कि ये ऐसा ड्रामा करेंगे, और 15-20 दिन पहले से हमें ये एक इंस्ट्रक्शन आ गई थी कि तैयारी करें, इलेक्शन सुबह में हो सकते हैं। तो हम तो तैयारी शुरू की हुई है, और कल भी आज भी हिदायत आए कि कैंडिडेट्स के नाम फाइनल करके तो भिजवाए जाएं। तो मैं चूंकि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ तो हमें तो हिदायत ये आ गई हैं, तो हम इलेक्शन में जा रहे हैं, इंशाल्लाह बात से कामयाब होंगे। और ये इन्होंने जो इनका ख्याल था कि ये नून वाले इलेक्शन से भागेंगे, हम भागने वाले नहीं है इंशाल्लाह। तो फिर विफाक में भी कर लीजिए न्याई साहब, ताकि ये बेयकीनी की जो सूरत हाल है, इसका यकीनन आप इस चीज से इत्तफाक करते होंगे कि इसका मुल्क को नुकसान है। एक तरफ अभी नवाज शरीफ साहब का बयान भी चल रहा था, शहबाज शरीफ साहब कभी जी ब्लैकमेल करते हैं इमरान खान साहब, तो ये सारी ब्लैकमेलिंग खत्म हो जाए, ये एक अनसर्टन सिचुएशन जो है, ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है, ये खत्म हो जाए और पूरे मुल्क में इंतखाबात हों। आप देखिए पीटीआई की सोच में हमारी सोच यही फर्क है। हम रियासत का सोचते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क किस स्थान पे खड़ा है, हमारे मुल्क की मीशत किस जगह पे खड़ी है। हमें हमारे बाहर के मुल्कों से, बाहर के इदारों से, IMF से हमारे मुज़ाकरात चाह रहे हैं कि किस तरह इकानमी को स्टेबल किया जाए। देखो जी, हम अगर आज असम्बली तोड़ देते हैं, ठीक है, अगले 3-4 महीने 90 दिन इलेक्शन, फिर महीना 1.5-4-5 महीने तो हमारी इकानमी कहाँ पे खड़ी होगी? सब चीजें ऊपर यहाँ खड़ी वहीं खड़ी। अब तो सारे दायरे कहेंगे जी नई हुकूमत आएगी उस पर बात करेंगे। और फिर एक और ये भी बात बताऊं कि जब हमारे एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं है, ये जो नारा लगता है ना कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल होगी, कतई न्यूट्रल नहीं है। नहीं है न्यूट्रल, बिल्कुल नहीं है। मैं वसूख से कह रहा हूँ। ये आप वसूख से पंजाब में एतमाद के वोट के बाद कह रहे हैं या पहले भी आपकी ये राय थी? इससे पहले कर मियाँ साहब के जो नाने की वजह है मेन हुई, वो जो है वो मियाँ साहब कहते हैं कि जो हमारे एस्टेब्लिशमेंट है हमारे से इख्तियार दिया था और कहा था कि आप आगे मुल्क को संभालें, उस वक्त उन्होंने जो वादे किए थे और किए थे वो उन्होंने पूरे नहीं किए। नहीं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब के, हमजा शहबाज के, मरीम नवाज साहिबा के, एसआर डार साहब के, सबको रिलीफ मिला। भाई वो तो क्या आपने तरमीम की, उसमें कैसे तो रिलीफ क्या मिला? सारे झूठे चीजें थी, उसमें रिलीफ क्या मिला हमें? हमजा शहबाज को 2 महीने रख के अगर इमरान खान ने, और निकला कुछ नहीं, और रोजाना ये टीवी पे आके टीटीआई के मनी लॉन्ड्रिंग है, वो भाई बाहर के मुल्क जो इदारे हैं, NC और दूसरे, वो कह रहे हैं कि शहबाज की मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की है। इन्होंने एक झूठे बयानिया बना लिया कि ये करप्ट है। अब मैं तो न्याय साहब, जिस तरह मरीम नवाज साहिबा ने पाकिस्तान में रह के केसेस का सामना किया, नवाज शरीफ साहब भी आकर केसेस का सामना करें। अली साहब मैं बताऊं, ये जो फवाद चौधरी को उसने BBC को इंटरव्यू दे रहा था, उसमें वो वहां के एंकर ने कहा कि जी आप तो करप्शन कहते हैं कि बनाम करप्ट नहीं है, तो आपके दौर में तो 22 साल पाकिस्तान करप्शन और नीचे गया है। तो मतलब उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो ये लोग झूठे हैं और बयानियां बना लेते हैं, इनको कोई फिक्र नहीं है कि मुल्क का क्या होगा, मुल्क की इकानमी का क्या होगा। देखो मुल्क हम सब का है, जितना उनका मुल्क है, जितना हमारा है उतना ही उनका है। अगर उनके साथ नहीं है, हमें कोई खुदा, हमें कोई इस बात पे नहीं है कि हम एक्शन में न जाए, हम तो जाते हैं। असम्बलियां तो अगर मुल्क की मीशत इतनी है कि साथ है कि और मुल्क और तो जरूर हम असम्बलियां तोड़ देंगे। ज़ाहिर इलेक्शन अगर आज 4-5 महीने बाद तो होना ही है ना जी। लेकिन हम कहते हैं कि हमारी मुल्क की मीशत जो स्टीम लाइन हो जाए, हमारे एग्रीमेंट हो जाए,
हमारा जाके ये 5-6 महीने का गैप है इलेक्शन के दौरान वो। लेकिन उसमें तो देखिए ना कि जितनी भी डील्स हैं या इमदाद जो है, इसमें गारंटर तो इस्टेब्लिशमेंट है, तो गारंटर तो अपनी जगह पे मौजूद है, और गारंटर की मौजूदगी और उनकी सस्टेनेबिलिटी को तो ये इंटरनेशनल इदारे भी मानते हैं। यही वजह है कि उनको बतौर गारंटर कहते हैं कि आप गारंटी दें। सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट नहीं, जब तक आवाम की सपोर्ट नहीं होगी, सब सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट नहीं कि वो गारंटी नहीं मानते। ऐसा होता तो फिर मार्शल आ जाता, फिर मार्शल आके फिर वो सारा संभालते, और मार्शल किसी मसले का हल नहीं हो करता। जब तक कोई भी काम हो, चाहे हमारी मुईशत हो, चाहे हमारे दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हो, चाहे लॉ एंड सिचुएशन हो, जब तक पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं होती कोई मुहिम कामयाब नहीं होती। तो आपका भी कौमी असेंबली तहलील करने का कोई इरादा नहीं है? बिल्कुल हम करेंगे। हमारा ये 2-3 महीने 4 महीने की बात ज़ाहिर है, अगस्त के आके हम नहीं जा सकते उसमें तहरीर। तो और वक्फे पे जाते हुए ये भी बता दीजिए न्याय साहब कि क्या इमरान खान साहब की अब चूंकि केपीके में भी और पंजाब में गवर्नमेंट नहीं होगी, तो क्या उनको गिरफ्तार करने का इरादा है आपका? नहीं, हमने देखो, मैं ये बात बताऊं कि हमने शुरू से एक ही बात कही है कि हम कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं करेंगे। हाँ, अलबत्ता इदारे आजाद होंगे, वो अपना कानून पर रास्ता अपनाएगा, अगर उनकी गिरफ्तारी बनती है तो गिरफ्तार किया जाएगा। इमरान खान की तरह हम नहीं कहेंगे कि उसको पकड़ो और इसको पकड़ो। दिन को टीवी पे शाम को इनके वज़रा के कहेंगे कल फलां को पकड़ लेंगे, तो अगले दिन पकड़ा जाता था। FIO को फिर इतना प्रेशराइज किया कि शहबाज शरीफ पे आप पता जो पर आप धमकाते तो रहते हैं ना। अब मैंने कल के प्रोग्राम में भी कोट की थी अता तारड़ साहब की एक ट्वीट के, जिसमें उन्होंने डोगर साहब को, आशिम डोगर साहब को, जो वजीर थे इसलिए क्योंकि अब पंजाब असेंबली तहलील होने जा रही है, उनको उनकी ट्वीट पर उन्होंने कहा कि आए आपको कॉफी पिलाएं, FIA में बड़ी अच्छी बनती है। नहीं, वो तो देखो एक मुकाबलेबाजी है ना, हमें तो मजबूरन जवाब देना पड़ता है। हमें तो वो एक हमारे पे क्वेश्चन डालते हैं, हम जवाब देते हैं। अगर जवाब ना दे तो हम अपने वर्कर्स को क्या जवाब दें? हमारा वर्कर्स को मोरल डाउन होता है। देखो, हमने कोई एग्रेसिव काम नहीं किया, हम तो डिफेंस में चलते हैं कि कोई तो इस मुल्क में हो जो उस मुल्क को बचाने की, जमहूरियत को बचाने की कोशिश करे। सारे अगर इमरान खान की तरह होंगे तो ये मुल्क का कचूमर निकल जाएगा। ठीक, न्याय साहब एक वक्फा हम ले लें। वी हैव गॉट टू टेक अनदर शॉर्ट ब्रेक जी। वंस वी रिटर्न फ्रॉम द ब्रेक, तो हम कराची में, हैदराबाद में जो सिंध में बलदियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला है, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक जी। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए अब सिंध के बलदियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला जो कि कल होने जा रहा है, और होगा नहीं होगा यही अब तक चलता रहा, लेकिन अब वो कंफर्म हो गया है कि कल वोटिंग होगी और लोग अपना वोट का हक इस्तेमाल करेंगे। लालचंद मल्ली साहब, क्या रिजल्ट आते हुए देख रहे हैं आप? अब से कुछ देर पहले की खबर थी कि जो ये जरा डाउटफुल था कि MQM पाकिस्तान बॉयकॉट करेगी या नहीं करेगी, तो MQM पाकिस्तान की तरफ से फैसला आ गया कि वो इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, लोकल बॉडी इलेक्शंस में। तो क्या रिजल्ट आते हुए आप देख रहे हैं? अली भाई, उस पे आने से पहले एक थोड़ा सा मैं कमेंट कर दूं। गौस बख्श नियाज़ी साहब जो है वो कई सीनियर रहनुमा है PMLN के, और उन्होंने आज कहा कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो न्यूट्रल नहीं है। गुज़श्ता 8 माह से पूरी PDM, पूरे जो है पीपल्स पार्टी और इनकी पूरी क़यादत हमें ये सुनाती रही है कि हम रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि जो है एस्टेब्लिशमेंट इनकी सपोर्ट कर रही है और न्यूट्रल हो गई, हमारी सपोर्ट कर। लेकिन आज ये खुद अपनी उस सारे 8 माह मुसलसल जो इन्होंने इल्जामात लगाए हैं, आज उनसे ये खुद विथड्रॉ कर रहे हैं। सिर्फ वजह क्या है? ये कहते हैं हम इलेक्शन से घबराते नहीं है। भाई, आप इलेक्शन से नहीं घबराते तो आपने इस्लामाबाद का क्यों इलेक्शन पोस्टपोन कर दिया? आप इलेक्शन से नहीं घबराते। आप इनके साथ बेसिकली हुआ ये है, जो पंजाब में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मिला है परवेज इलाही साहब को, ये समझते हैं कि जो MPs थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और Q लीग के, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता, उनको जेलों में डाल लिया जाता। इनकी तरफ से उन्होंने फोन कॉल्स की, इनके लिए उनको कहा, उनको प्रेशर डाला गया। हमने उनकी बरमला स्टेटमेंट्स भी दी है कि हम ये बात जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी उठाएंगे कि इस तरह कुछ लोग जो है इन्वॉल्व होते रहे। अब ये किस, और इन्होंने वजह भी बता दी कि नवाज शरीफ को नहीं आने दे रहे। भाई, वो कौन, क्या टिकट लेके देना है अपना एस्टेब्लिशमेंट को नवाज शरीफ के आने के लिए? वो टिकट ले खुद आ जाए, वो यहाँ से वापस कोई रवाना करे तो कहे ना उनके भाई प्राइम मिनिस्टर है। तो ये तो मुझे तो मेरी समझ से बाहर है। PDM सिर्फ इलेक्शन से वही नहीं भागती। मैं बता, मैं जरा इस पे
मलिक साहब एक मिनट जी, न्याय कर लें वो बात, न्याय साहब एक जुमला, फिर उसके बाद मैं आ रहा हूं की तरफ। जी न्याय साहब। वो आए ना आए, आपको क्या तकलीफ है? और एस्टेब्लिशमेंट अगर मैं कह रहा हूँ न्यूट्रल नहीं है तो वो आपकी फेवर कर रही है ना। आप उल्टा इल्जाम हम पे लगाते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट आपके साथ है, तो अपने गिरबान में जाओगे। एक तरफ आप कहते हैं हमारे 186 पूरी हो गए, फिर अगले दिन 5 बंदों को नोटिस देते हैं कि जी ये इन्होंने हमें वोट नहीं दिया, तो फिर 186 कैसे पूरी हो गए? जी मलिक खुद साहब। अपने गिरबान में झांको। जी मलिक साहब। चले जी, हम अपने गिरबान में झांक लेते हैं। पहले तो आप ही तो जरा देखें ना, पहले तो आप अपने गवर्नर को हटाए, जिसने कोर्ट में आके ये स्टेटमेंट दी कि उन्होंने एतमाद का वोट ले लिया है, उनके मेंबरान पूरे हैं। आप तो आपकी सारी क़यादत इसको एक्सेप्ट कर रही है, उन्होंने डिफीट एक्सेप्ट की है, उन्होंने शिकस्त, शर्मनाक शिकस्त कबूल की है, तो अब तो ये बात बनती नहीं है। आप इलेक्शन से वही नहीं भाग रहे, पीडीएम पूरे इलेक्शन से भागती है। 2 दिन से पीपल्स पार्टी ने, सिंध हुकूमत ने 2 लेटर लिखे हैं अपना इलेक्शन कमीशन को कि सिंध में इलेक्शन पोस्टपोन किए जाए। आपकी दूसरी जो इत्तेहादी जमायत है एमक्यूएम, वो कहते हैं कि किसी भी सूरत में हम इलेक्शन नहीं होने देंगे। तो ये हाल है पीडीएम का, जिस तरह इन्होंने मुल्क का जो हाल किया है, लोग इससे नफरत करते हैं। और आप देखें पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम एक ही सिक्के के 2 रुख है, हमेशा एक दूसरे की मदद को आते हैं, एक दूसरे को बचाने आते हैं। अब देखेंगे इंशाल्लाह कल पाकिस्तान की कराची हैदराबाद डिवीजन की आवाम को पता है कि मुकाबला किसमें है। 2 चीजें, एक इमरान खान है और दूसरी तरफ वो है जो 30 सालों से इस मुल्क को लूट रहे हैं। ठीक है न्याय साहब, जरा क्लोजिंग रिमार्क्स दे दीजिए, जिसमें ये भी बता दीजिए जो अभी मलिक साहब ने कहा कि अगर आप इलेक्शन से भाग नहीं रहे तो फिर आपने लोकल बॉडी इलेक्शन इस्लामाबाद की क्यों नहीं करवाया आपने? अच्छा अली साहब, कुछ ही ऐसे पता आन एयर नहीं कह सकता, बड़े सिक्योरिटी थ्रेट थे, बड़ा प्रॉब्लम था, उस पर मुलतवी किया। अब यहाँ रेड जोन में एक 5 स्टार होटल को अमेरिकन कहें कि जी वहाँ हमारे बंदे ना जाए, वहाँ दहशतगर्दी खतरा है, वहाँ इलेक्शन कराने चाहिए। आप देखें अगर एक कैम्प में, मैं समझता हूँ कि पीटीआई के कैम्प में एक कोई ऐसे कोई फायरिंग हो जाती है, इल्जाम तो हुकूमत पे आ गया, और फिर क्या होगा कि लड़ाई झगड़े होंगे, फिर जलाओ गिराओ होगा, जिस तरह 25 मई को उन्होंने गिराओ जलाओ किया था, तो बदअमनी पैदा होती है। हमने इसलिए किया है। और फिर जो ये कह रहे हैं ना कराची में कि जी एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी एक के 2 रुख हैं, तभी खान साहब शाम को एमक्यूएम को बुला रहे थे कि मैं एमक्यूएम के फैसले का इंतजार कर रहा हूँ, अगर वो बाईकाट करें तो हम भी बाईकाट करेंगे। इनके पास समझ नहीं आती कि पीछे बैकआउट नहीं करेगी। चलें कल तो खैर पता चल जाएगा, और ये भी कल पता चल जाएगा कि 2018 के नताइज को लेकर इलेक्शन में जा रही है। 2018 के नताइज पर ये सबका कहना था कि जी ये मैनेज थे, इस वजह से पीटीआई वहां से इतनी सीट जीत गई। तो कल की लोकल बॉडी इलेक्शंस में पता चल जाएगा कि कराची में एमक्यूएम कहां पर खड़ी है और पीटीआई कहां पर खड़ी है और पीपल्स पार्टी कहां पर है और जमात इस्लामी कहां पर खड़ी है। जिसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। न्याय साहब को बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। लालचंद मलिक साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मुझे अली मुमताज को आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।